Yes. Good morning, class 9 students. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the 5th chapter of your supplement reader moments. The chapter entitled The Happy Prince. The Happy Prince was a beautiful statue, right? He was covered with gold. The statue of Happy Prince was gold, having gold leaves, or it was gold plated. He had sapphires for eyes. Now, sapphire is a precious stone. In Hindi, we call it Neelam. A blue sapphire is known as Neelam, and yellow sapphire is known as Pukhraj. So, in place of eyes of that statue, some precious stone, sapphire, were affixed, and a ruby in his sword. Another precious stone, ruby, was there. In Hindi, we call it mani. In the sword, hilt of the sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? फिर वो क्यों जुदा करना चाहता था हैप्पी प्रिंस अपने आप से रूबी और सफ़ायर को, राइट? So let us read and find out the reason. High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. तो शहर में एक ऊंचे स्थान पर एक ऊंचे स्तंभ के ऊपर वहाँ हैप्पी प्रिंस की मूर्ति थी. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. उस मूर्ति के चारों तरफ जो है मतलब उस मूर्ति के ऊपर सुंदर सोने की पत्तियाँ लगी से वो ढकी हुई थी. For eyes he had two bright sapphires. आँखों के स्थान पर दो कीमती नीलम लगे हुए थे. And a large ruby glowed on his sword hilt. और उस हैप्पी प्रिंस की स्टेचू के ऊपर उसकी जो तलवार थी उसकी मूठ के ऊपर हिल्ट यानी मूठ, स्वॉर्ड हिल्ट में तलवार की मूठ, वहाँ पर एक बड़ी सी मणि लगी हुई थी लाल रंग की. One night there flew over the city a little swallow bird. तो एक रात को उस शहर के ऊपर उड़ान भरता हुआ एक swallow bird वहाँ पर पहुँचा. Now swallow is a kind of a bird. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके जो मित्र थे वो 6 सप्ताह पहले इजिप्ट जा चुके थे. But he had stayed behind. लेकिन वो पीछे ही रुक गया था swallow bird. Then he decided to go to Egypt too. फिर उसने भी निश्चय किया इजिप्ट जाने का. All day long he flew and at night time he arrived at the city. सारे दिन ये swallow bird उड़ान भरता रहा और रात के समय वो शहर में पहुंचा जहाँ पर हैप्पी प्रिंस की स्टेचू थी. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparation. मैं कहाँ पर जाकर रुकूं? swallow bird ने कहा मुझे ऐसी आशा है कि इस शहर के लोगों द्वारा मेरे स्वागत की तैयारियां की गई होंगी. Then he saw the statue on the tall column. फिर उसने देखा कि एक बड़ी सी मूर्ति जो है वो बड़े से स्तंभ के ऊपर लगी हुई उसने देखा. I'll put up there, he cried. It is a fine position. तो उसने कहा कि अब मैं इस मूर्ति के ऊपर जाकर बैठूंगा. चीख कर उसने swallow bird ने कहा ये एक बहुत अच्छी स्थिति में लगी हुई है और पर्याप्त मात्रा में यहाँ ताज़ा हवा उपलब्ध है. So he alighted just between the feet of the happy prince. इसलिए वो उतर गया जाकर उस हैप्पी प्रिंस स्टैचू के दोनों पैरों के बीच में. I have a golden bedroom. He said softly to himself as he looked round. तो जैसे ही उस swallow bird ने चारों तरफ निगाह लगाकर देखा तो उसने कहा मेरा जो बेडरूम है वो सोने का बना हुआ है. And he prepared to go to sleep. और ऐसा कहते हुए उसने सोने की तैयारी प्रारंभ की. But just as he was putting his head
under his wings. A large drop of water fell on him. लेकिन जैसे ही वो पंखों के नीचे सर रखकर सोने का प्रयास कर रहा था, तभी एक पानी की बूंद आकर उसके ऊपर गिरी. What a curious thing, he cried. कितनी जिज्ञासापूर्ण बात थी. उसने चीखते हुए कहा, There is not a single cloud in the sky. आकाश में एक भी बादल नहीं है. The stars are quite clear. तारे बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं. And bright, और चमकीले हैं. And yet it is raining. और फिर भी बारिश हो रही है. Right? Yet another drop fell. उसके बाद दोबारा से एक और बूंद वहाँ पर गिरने लगी. Right? What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? इस मूर्ति के नीचे ठहरने का क्या तात्पर्य है यदि ये बारिश को मुझसे दूर नहीं रख सके. I must look for a good chimney pot, and it determined to fly away. तो swallow bird ने निश्चय किया वहाँ से उड़ान भरने का, ये कहते हुए कि मुझे निश्चित रूप से एक अच्छे से चिमनी पॉट के नीचे जाकर ठहरना चाहिए. चिमनी को कवर अप करने के लिए जो पॉट लगाया जाता है जिसकी बारिश का पानी उसके अंदर नहीं जाए. बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल. लेकिन इससे पहले कि स्वैलो बर्ड ने उसके पंख खोले उड़ान भरने के लिए, तभी एक तीसरी बूंद आके गिरी. एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा और कहा, व्हाट डिड ही सी? अरे वो क्या देख रहा था? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स. उस हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थीं वो आंसुओं से भरी हुई थी. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स. और आंखों से आंसू बहते हुए उसके सुनहरे गालों पर आ रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी. उसका चेहरा इतना सुंदर चांदनी रात में दिखाई पड़ रहा था कि वो लिटिल स्वैलो बर्ड का हृदय राजकुमार की आंखों में आंसू देखकर दया से भर गया. हु आर यू? ही सेड. उसने कहा, तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस. ठीक है, तो स्टैचू के अंदर से आवाज़ आई कि मैं एक खुशहाल या प्रसन्न राजकुमार हूँ. वाई आर यू बीइंग देन? तुम क्यों रो रहे हो? आज द स्वैलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी. तुम्हारे आंसुओं ने तो मुझे बिल्कुल गीला कर दिया. ड्रेंच मीन्स टू गेट वेट. व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट. जब मैं जीवित था और मेरे अंदर एक मानवीय हृदय था. आंसर द स्टैचू. स्टैचू ने जवाब दिया, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर. तो मैं ये नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थे. फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस. क्योंकि मैं महल में रहता था राजकुमार होने के नाते. वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर. जहाँ पर दुख को जाने की अनुमति नहीं होती. माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस. मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से पुकारते थे. एंड हैप्पी इंडीड आई वाज. और वास्तव में मैं प्रसन्न था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. इस तरह से मैं जिया और इसी तरह से एक हैप्पी प्रिंस के रूप में मैं मर गया. एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो आई. और अब चूँकि जब मैं मर चुका हूँ तो उन्होंने मुझे यहाँ इस ऊंचे से स्तंभ के ऊपर मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया. दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी. कि मैं देख सकता हूँ कुरूप या भद्दापन और सारे कष्ट और यातनाएं जो मेरे शहर के लोगों द्वारा भुगती जा रही हैं. एंड दो माई हार्ट इज़ मेड अप ऑफ लेड. और यद्यपि मेरा दिल शीशे का बना हुआ है. लेड इज़ ए मेटल. येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप. तो सिवाय रोने के मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है. वाट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ. स्वैलो बर्ड ने स्वयं अपने आप से कहा, क्या ये मूर्ति ठोस सोने की नहीं है? ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स. वो इतना विनम्र था कि इस मूर्ति के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी वो नहीं करना चाहता था. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस. बहुत दूर उस मूर्ति ने
संगीतमय स्वर में अपनी बात कहना जारी रखा। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस। बहुत दूर छोटी सी गली में एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमन seated at the table. One of the window of that house is open, and through that window I can see a woman sitting nearby a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hand. उसका चेहरा एकदम पतला दुबला और थका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। उसके खुरदरे से लाल हाथ हैं, all pricked by the needle, और वो हाथ जगह जगह सुई से छिदे हुए हैं। For she is a seamstress. She is a lady tailor. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maid of honor. तो उस महिला दर्जी के द्वारा फूलों का कशीदा काढ़ा जा रहा है एक साटिन के बने गाउन के ऊपर जो रानी की प्रमुख सेविका के लिए वो बना रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल। उस प्रधान सेविका को वो साटिन का बना हुआ कशीदे का गाउन अगले राजा के दरबार में होने वाले नृत्य समारोह में पहनना है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। एक पलंग पर कमरे में कोने में उसका छोटा सा बेटा बीमार पड़ा हुआ है। ही इज़ ए फीवर, उसके बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो उसकी माँ से उसको संतरे देने की मांग कर रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय नदी के जल के। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो चिल्ला रहा है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ड। क्या तुम मेरी तलवार की मूठ पर लगी हुई मणि को नहीं मेरे लिए निकाल कर लाओगे। माई फिट आर फासन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मेरे जो पैर हैं वो इस मूर्ति के स्तंभ से बंधे हुए हैं और मैं यहाँ से उड़ नहीं चल फिर सकता। राइट। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड Swallow. Swallow just said that my friends are waiting for me in Egypt and I am supposed to go there, right? And they are flying up and down the Nile and they are just flying over the large lotus flowers. Soon they will go to sleep, right? The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The prince asked Swallow to remain here for one night and act as his messenger. The boy so thirsty. वो लड़का इतना प्यासा था। And the mother so sad. उसकी माँ बहुत ज़्यादा उदास थी। He said, Happy Prince ने कहा, I don't think I like boys. Answered the swallow. Swallow bird ने उत्तर दिया कि मैं ऐसा नहीं सोचती कि मुझे लड़के पसंद हैं। I want to go to Egypt. Right? मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वाज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिखाई दिया कि लिटिल स्वैलो बर्ड जो है उसकी उदासी को देखकर दुखी थी। इट वॉज वेरी कोल्ड हियर। यहाँ पर बहुत अधिक ठंड थी। ही सेड बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट। लेकिन वो सहमत हो गया स्वैलो बर्ड मूर्ति के पास ठहरने के लिए एक रात के लिए और हैप्पी प्रिंस का संदेशवाहक बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि आपको धन्यवाद लिटिल स्वैलो। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड। स्वैलो बर्ड ने उस राजकुमार की तलवार में लगी हुई जो एक बड़ी सी मणि थी वो निकाल ली, उखाड़ ली और वो अपनी चोंच में उस मणि को रखकर उड़ान भरता हुआ उस शहर के आकाश में उड़ान भरने लगा। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर। वो एक चर्च की मीनार के ऊपर से गुजरा। विद द वाइट मार्बल्स एंजल्स वर स्कल्प्टेड। जहाँ पर सफ़ेद रंग के संगमरमर के देवदूत एक नक्काशी के माध्यम से उन
मीनारों के ऊपर उकेरे गए थे। ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। ठीक है, वो राजा के महल के ऊपर से उड़ान भरता हुआ गुजरा स्वेलो बर्ड, और उसने वहाँ लोगों के नृत्य करने की आवाज़ सुनी। एक सुंदर लड़की महल से बाहर आई, बाहर बालकनी में उसके प्रेमी के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। उसने कहा, उस लड़की ने, कि मुझे आशा है कि मेरी जो ड्रेस मुझे स्टेट बॉल डांस पार्टी में पहननी है वो तैयार समय पर हो जाएगी। आई ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। मैंने उस ड्रेस के ऊपर फूलों का कशीदा काटने का आदेश दिया है। बट द सेमेस्ट्रेट्स आर सो लेजी। बट द लेडी हु इज़ डूइंग द work of making them gown along with embroidery, they are quite lazy. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. Right? वो नदी के ऊपर से उड़ान भरता हुआ स्वेलो बर्ड गुजरा और उसने देखा बड़े बड़े जहाज़ों के मस्तूल यानी उसके सेंटर पिलर के ऊपर लालटेनें लटकी हुई थी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस एंड लुक्ड इन। अंत में वो एक गरीब महिला के घर के ऊपर आई और अंदर झांक कर उसने देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फ्रीवियसली ऑन हिज बेड। वो बुखार से पीड़ित होकर वो लड़का उस महिला का बिस्तर पर इधर उधर अपने सिर को हिला रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप। उसकी माँ भी जो है सोई हुई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही होप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल। थिम्बल इज़ अ मेटलिक कैप worn बाय टेलर्स, अवॉइड प्रिकिंग ऑफ द नीडल। राइट? और वो स्वेलो बर्ड फुदकता हुआ उस कमरे के अंदर उसने प्रवेश किया। बड़ी सी मणि उसने टेबल के ऊपर रख दी जहाँ पर उस महिला कि वो मेटल कैप पड़ी हुई थी। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। फिर वो धीरे से उस बीमार लड़के के पलंग के पास पहुंचा। फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विद हिज विंग्स। और ऐसा करते हुए उसने उस लड़के का जो ललाट था उसको अपने पंखों से वो हवा करने लगा। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर। कितनी ठंडक मैं महसूस कर रहा हूँ, लड़के ने कहा, और निश्चित रूप से अब मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो मीठी नींद में खो गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। फिर स्वेलो बर्ड ने वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ान भर करके वो पहुंचा। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। और उसने कहा कि वो क्या करके आया है। इट इज़ क्यूरियस, ही रिमार्क। उसने जिज्ञासापूर्ण तरीके से टिप्पणी करते हुए उसने कहा, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। स्वेलो बर्ड ने कहा, क्योंकि ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लाइंग ही वॉज फीलिंग ए लिटिल बिट हॉट। सो ही जस्ट सेड, आई एम फीलिंग क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस सेड दैट यू हैव डन ए गुड एक्शन ऑफ हेल्पिंग ए पुअर लेडी। And the little swallow began to think and then fell asleep. Right? Thinking away made him always sleepy. So that's why swallow bird just fell down there and had a sound sleep. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Right? When it was sunrise, he just flew to the river and had a nice bath. Today I go to Egypt, said the swallow. Swallow bird said, okay, today I am going to Egypt. And he was in high spirit at the prospect. He was full of energetic spirit. He visited all the monuments and sat long time on the top of the church steeple. Okay, he visited almost all the monuments of that city, and for a long time he remained sitting there on one of the minaret of the church. So this is all about today's lecture number 1 of the chapter Happy Prince. Tomorrow I will continue the same. Thank you all.